Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of Baat Se Baat with Arden. I was actually very excited for today's episode. जनाब, जहाँ कुछ लोगों से दो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, हमारे आज के मेहमान पहाड़ चढ़ते हैं. He is a mountaineer. He is a visual storyteller. He has done 3 TED Talks. He has a huge media profile. Trekking बहुत सालों से कर चुके हैं. He started trekking back in 1996, climbing back in 2008. So we have a lot to discuss. So yes, ladies and gentlemen, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे. Without any further ado, let's have Saad on screen with us, as known as Desi Mountaineer, on screen now. And hello, Saad. Hey Arden, good to see you. बड़ा ज़बरदस्त introduction आपने कराया. I'm more excited than you right now. So yeah, thank you so much for having me on your live अरे session. Yeah, so I it really is an honor and it's a pleasure for me. thank you so much. I love the background music. It's nice and mellow. Pretty much how I am usually when I'm not on the mountains. But yeah, I guess this would be a nice क्या sound बात है, क्या while I trek. So yeah, so I'm here. Ask away what So you how want to know. are you? Alhamdulillah, A1 Zabardast. Let me put my glasses on. ताकि we should start mirroring each other. Yeah, okay. Now we look similar. जरा. और यस, अच्छा. तो साथ क्या रूटीन चल रही है आजकल? मतलब हम देख रहे हैं कि अभी तो आप घर ही हैं, तो घर Yeah. में क्या रूटीन चल रही है? So for the people who might not be familiar with who I am, so my name is Saad Muhammad. I'm known as the Desi Mountaineer on social media. That's DESI, Desi and Mountaineer. It's consistent across almost all platforms. सिर्फ Instagram पे Desi dot Mountaineer है. तो मैंने खुद Desi Mountaineer लेके खराब कर दिया था. So now I'm stuck with that. So I've got a decent presence on Twitter. I've got a decent presence on YouTube, on Facebook. So yeah, I think the music has gone a bit too up. If you could, yeah. अच्छा, वो मैं म्यूजिक का बिल्डअप बन रहा होगा ना. Oh, okay. Yeah. Anyway, अच्छा, अब so yeah, so yeah. I was hoping to go for a winter expedition this year, like, I got busy with a couple of adventure TV series that I made for a local channel जिनको अंग्रेजी content चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है, Exactly, हिंदी बिल्कुल. content बना देते हैं. So I literally went from making 1 minute videos on Instagram to doing 22-minute episodes for TV, which is something I did not know that I would be able to do, लेकिन I was able to do that. और वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है. और and कोई आम टीवी सीरीज नहीं. One was of a winter expedition to a remote valley, Shimshal, which is near Hunza. वहाँ we went for a peak which has not been climbed so far. So वो बड़ा मज़ेदार content था. Then the second was in the neighborhood of K2. We went to Gashaprim, we went to Broad Peak, we went to K2 base camp, K2 KB बल्कि advanced base camp तक. So a lot of my goals, my dreams were being fulfilled, despite the fact that I could not climb as high as I wanted to. लेकिन content बड़ा मज़ेदार बन गया, and I might do an Urdu edit of it quite soon. So for people who don't know what I'm talking about here, it's it goes by the name of Into the Icefall. So Into the Icefall is my second TV series that I made for TV. Exactly, बिल्कुल. Yeah, in Sardiyon I wanted to go climb again, but I was busy with finishing off my second expedition की footage वगैरह. I was in post processing. तो वो जो है February में I got free. Finally I got free. तो फिर instead of going up north I went down साउथ पंजाब का एक चक्कर लगाया. उसकी को 5 एपिसोड बनाई, अपने चैनल पे चढ़ा दी. उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, एवरीथिंग. वो पंजाबी भी जरा सराइकी करके निकली. सो वो बड़ा मजेदार कंटेंट है, वो भी देखने वाला है. So I did that. Yeah. So yeah, Desi Mountaineer, when they go south, so they have to do something odd. So that is what I did. Or in the lockdown, I've been really busy. वो देखने तो रहना चाहिए. Yeah.
So I've been busy contrary to many people जो कि शिकायत करते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. So I've been busy with an e-commerce project, and I've been busy with my YouTube videos. I've got a lot of backlog. I've lot of content that I need to edit. So I do my own editing. I do my own sound. मतलब voice over भी मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही करता हूँ. तो फिर वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है. तो अभी भी अगर मैं आज यहाँ ना होता तो I might have been editing Nice. a fresh content, a fresh piece of content. So yeah, so that's what's been keeping me busy. फिर लॉकडाउन में like all other people मैं सुस्त हो गया. तो being in Lahore मेरा टिड बाहर आ गया. तो then now I've started क्या working बात out. है. So मैं yeah, भी so खींच के बैठा हूँ. नहीं आपका तो चलो फिर भी शर्टें शूटें पूरी आ रही, मैं तो अब बिल्कुल टी शर्टों पे आ गया हूँ. मेरे से अब ड्रेस शर्टें नहीं पहनी जाती. So I'm aiming to get back in shape, and I'm gonna inshallah be back in shape in another Right. couple of months. But not just in shape, I want to be in the best shape of my life. So that is what I'm aiming for now. So I found a guy. I've started Oh. training with him. तो देखते हैं क्या बनता है. I'm gonna map that journey on my Instagram, I guess. Maybe do an episode on YouTube as well. So yeah, Oh. that's what keeps me busy. From day one till da. और बड़ी जबरदस्त जर्नी होगी. कोई टेढ़ी टेढ़ है जिसने जाना है, बाकी सब कुछ ठीक है पहले से. अच्छा. Saad, if you could, talk us through कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ. Okay. 1996. Yeah. It's So अगर been a long time. हाँ. और मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी तो इसमें गुजर गई है. बिल्कुल So ऐसी. how बल्कि did this all start? yeah, so I talk about this my journey in my TED talks. I have touched upon this subject. लेकिन yeah, it is something that जितनी दफा भी शायद बात की जाए तो it would still make sense. I was part of a family that traveled a lot. So before the age of 10, I'd been to Khunjrab, I'd been to Naran, Kagan, Kartuj, Shigar, सब देख लिया हुआ था. दुसाई देख लिया हुआ था. So this is all before the age of 10. On my 10th birthday, I was with my family traveling through Europe, a bit of US. तो एक आधा उम्रा भी बीच में हो गया. तो I was very well traveled. Mhm. So I'd say yeah, I was kind of lucky to have traveled at such a young age. तो 96 में मैं our father हम तीन भाई हैं, तो हम तीनों को उन्होंने मेंबरशिप ले दी एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान की, which is a very good organization for youth. और we became member of those, and I did my first ski course in 1996. Skiing की उन्होंने कहा जी आप तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो why not come for another course and we'll take you to the championship. मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या बातें हो रही हैं. So instead of the championship next year, I went and I did a trekking course with them. मैंने कहा चलो ट्रैकिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है. So 97 was my first peak actually, which was Makda in near Shugran Kagan में. Makda 3800 कुछ 83 मीटर है, छोटा सा पहाड़ है, but yeah it tells itself. वो भी बता देता है आपको कि मैं हूँ. हाँ. So वो किया, वो मेरा पहला ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था. वहाँ मुझे पता लगा कि I have the knack for cooking as well, कि मैं पतीले में चाय शाय भी बना दूंगा टी बैग से. और so बड़ा मजेदार था वो. So never looked back. Next year फिर skiing की, फिर trekking की. So for the next 7, 8, 9 years, I kept on doing treks to high passes, to lakes, to base camps. K2 base camp भी देख लिया, राकापुशी base camp देख लिया, नागा पर्वत base camp देख लिया, मिंतका पास कर लिया. So 9 साल ट्रैकिंग करने के बाद मैंने कहा यार अब काफी कर ली ट्रैकिंग. Now I need to up the game. I need to do something more. अब क्या? So next logical step was to go climb a mountain. Or mountain भी I chose a 6,000er in Shimshal. Right. Shimshal, by the way, is near Hunza. If people know about Samina Beg, तो Samina Beg is the only Pakistani woman to have climbed Everest. उसका गांव है ये. वैसे वो इस्लामाबाद में रहती, but उसका गांव है शिमशाल. So that's her playground, and it's at 3000 मीटर बुलंदी पे उनका गांव है. बड़ी खूबसूरत जगह है. वहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं. तो बड़ी हार्श इन्वायरमेंट है, बड़ी टफ रगड़ जिंदगी. अब आके कुछ वहाँ when now you go तो आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्टर टुक्टर नजर आते हैं, बट इन अर्ली 2000s वहाँ पे शाजो नादर एक आधा को ट्रैक्टर था, बल्कि वहाँ पे पहला ट्रैक्टर हेली ड्रॉप हुआ था. इतना रिमोट है वो. तो so amazing place to train, to learn, to explore. So I keep going back there. मैं 7 दफा वहाँ जा चुका हूँ. तो yeah, so
that the first time I went there was Oh, 2006 was the first time I went there. और मेरी पहली एक्सपीडिशन थी, there was a 6000 that I was attempting, और बड़ी epic failure किस्म की एक्सपीडिशन थी. I learned a lot. हाइट सिकनेस भी हुई, हिलुसिनेशंस भी हुई, ब्लैकआउट भी हुआ, मुझे उठा के भी लाया गया. सो वो काफ़ी कुछ हुआ उस एक्सपीडिशन में. अगले साल आई टुक इजी, आई वेंट फॉर अ ट्रैक अगेन. 2008 में मैंने कहा नहीं भाई ये तो काम ठीक नहीं हुआ, आई नीड टू गो टू शिमशाल एंड आई नीड टू रीगेन माय ऑनर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो आई वेंट देयर, आई डिड अ स्मॉलर पीक, को 5,500-1,000 मीटर की चोटी चढ़ ली. जब चढ़ ली तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, मैंने झंडा गाड़ दिया, आई कैन डू दिस, दिस इज समथिंग आई नीड टू कीप डूइंग. तो वहां से चल 2012 में आई क्लाइम्ब स्पांतिक विद, इट वाज अ जॉइंट पाकिस्तानी चाइनीज एक्सपीडिशन. इट वाज पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप एक्सपीडिशन. कोई 60 साल की दोस्ती को हम सेलिब्रेट कर रहे थे. तो चाइना ने तो बड़ी सेलिब्रेट की थी, यहाँ पाकिस्तान में हमने सिर्फ एक चोटी चढ़ी थी बस, और कुछ खास नहीं किया था यहाँ पे. तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट. या आई वाज पार्ट ऑफ दैट. आई वाज इफेक्टिवली representing Pakistan. Yeah, you could say I was the ambassador of Pakistan to China for 20 days or so. So yeah, so उनके साथ हमने वो चोटी चढ़ी, वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बड़ा मज़ा आया, बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था वो भी. उसके बाद जब वो 7,000 मीटर की चोटी चढ़ ली तो मैंने सोचा कि अच्छा अब आई शुड एम फॉर 8,000ers. तो 8,000 जो है दुनिया में 14 है, पाकिस्तान में 5 है, और जो मेरी किस्मत में पहली थी वो एवरेस्ट थी, जो दुनिया की सबसे ऊंची है. तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि मैं वहाँ से बच के आ गया, कुछ पहाड़ बच गया, कुछ मैं बच गया. सो मे बी अगेन आई गो अगेन. I made it to Camp 3 again, 7,000 meter on Everest. So Everest was a phenomenal experience. Nepal is a lovely place. The people are nice. So yeah, I would love to go back again. But Baltoro में जो मुझे मजा आता है, Baltoro being Pakistan again, K2 Shetu का जो area that is known as Baltoro, वो उसका अपना एक चार्म है. So initially जब मैं पहली दफा 2004 में K2 बेस कैंप तक गया था तो it was tough. I lost 11.5 किलो मेरा वजन गिरा था, और कोई खास था नहीं पहले जो जिसमें से गिर भी गया. तो I found it very very tough. The second time I went, the second time I went was 2017, उसी जगह पे, उसी साइड पे. तो I again found it very tough. Third time was last year. तो अब मुझे कुछ आसान लगना शुरू हो गया था. तो मैं आई थिंक इफ आई कीप गोइंग एवरी अदर ईयर तो इट कीप गेटिंग इजियर. तो शायद इसी चक्कर में मैं कोई 8,000 की छोटी चढ़ जाऊँ. सो या दैट इज हाउ इट इज. अच्छा, तो अब चोटी चढ़ने से पहले क्या क्या तैयारियां की? What's your process of preparation? ठीक है. So basically देखें, when you start doing your own expeditions. अच्छा, by the way, are we live? Yeah, I just found you on Facebook. Let me just share this link to my page as well, and I'll keep talking while I do that. So जब आप so जब आप करते हैं ना expeditions, तो when you start doing them yourself, तो you learn के चलो हो गया, गुड हो गया. या सो what you learn is कि सबसे पहला काम जो होता है ना एक्सपीडिशन का, it is your itinerary basically डे प्लान्स होते हैं आपके कि किस दिन क्या होगा. so let's say आप एक छोटी एक्सपीडिशन, छोटी से मतलब कि कोई 10-12 दिन की एक्सपीडिशन आप अगर सोच रहे हैं, या चले इससे भी छोटी कर लें, लेट्स से यू गोइंग टू राकापोशी बेस कैंप, तो उसमें कोई 3 से 4 दिन यूर ऑन द ट्रेल, यूर ऑफ द रोड. तो उसमें यू विल नीड टू डिसाइड कि भाई मैंने कहाँ रुकना है, मेरा रात का शेल्टर क्या होगा, मैंने खाना क्या है. सो दीज आर द टू थिंग्स. वंस यू डिसाइडेड कि हाँ पहली रात मैं हुंजा में हूँ, दूसरी रात मैं जो हूँ लेट्स से नगर से निकल गया हूँ, और अब मैं पहला कैंप कर रहा हूँ, लेट्स से हापाकून है, फिर तगाफरी है कैंप साइट है. सो यू नो द 2 कैंप साइट्स. अब यू हैव टू प्लान योर फूड अकॉर्डिंगली कि मुझे इतनी मील्स चाहिए, इतने नाश्ते, इतने खाने, इतने रात के खाने, इतनी चाय, इतनी कॉफी. सो यू मेक अ राशन लिस्ट ऑन योर मेन्यू. ठीक है. सो अब अगर लेट्स से आपकी शादी हो गई और आप घर पे, आपकी बेगम आपको पूछती है कि आज रात को क्या पकाएं, एंड इफ यू आर अ माउंटेनियर तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए. अगर आपको मुश्किल हो रही तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है. एनीवे, सो आपने मेन्यू बना लिया. मेन्यू बना के आपने इसका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन रख लिया. लेट से आपकी 50 चाय निकल रही हैं नाश्ते और शाम की चाय डाल के,
तो आप 50 की जगह 60 रख लेंगे, या आपको पैकिंग टी बैग की पैकिंग ही 100 की मिली है, आप 100 ले जाएंगे कि चलो कोई नहीं, किसी गरीब को भी पिला देंगे, या कोई मेहमान ही आ जाता है, कोई मिल जाता है. सो यू ऐसा ही है. मेक योर, हाँ, सो यू मेक योर राशन लिस्ट दैट वे, और आमतौर पे बच के ही आता है क्योंकि वहाँ भूख कम हो जाती है फॉर सम रीजन. सो आपका मेन्यू बन गया, आपकी आइटनरी बन गई. दिस इज वेयर यू स्टार्ट. नाउ जब आपने लेट से आपने डिसाइड किया कि मैंने ट्रैकिंग करनी है, आई वांट टू गो सी सम माउंटेन, सम बेस कैंप, सम आई वांट टू क्लाइंब अ पीक, तो रेकमेंडेड ये होता है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ग्रुप के साथ पहले इनिशियली जाएं. यू विल गेट टू नो कि एक जगह से Right. पहुंचना कैसे है, क्या क्या ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट के. यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कि आपका इक्विपमेंट क्या होना चाहिए. Unless and until you have not been on an expedition, you might not be clear on your equipment. Basic तो आपको नेट पे मिल जाता है, लिस्टें मैं भी बना के आपको लिस्ट दे दूंगा, बट अनलेस एंड अनटिल यू यूज इट, यू वुड नॉट नो कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ फालतू है, कौन सी चीज़ आपके साथ सूट करती है. तो या सो यू हैव टू डू दैट. सो एक आपकी पैकिंग लिस्ट होगी. सो एवरी एक्सपीडिशन has a Right. very good beginning where you can make a time lapse of yourself packing your stuff. वो बड़े मजेदार बनते हैं टाइम लैप्सेस की. बंदा बैठा हुआ है, बैग है, गद्दे पे सामान सारा यूं बखेरा हुआ है, एंड देन वो टक 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 बारी बारी सारा कुछ बैग के अंदर चला जाता है. सो या ठीक हो गया. सो नाउ you हाँ, you've done a couple of base camp treks with an organized party. तब आपको पता लग जाएगा कि जी मुझे क्या चाहिए, मेरे साथ क्या चीज़ें, मुझे सेल्फ ऑर्गेनाइज करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. सो नाउ यू कैन अपनी छुट्टी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, यू कैन प्लान एन एक्सपेडिशन के मैं फलाने पहाड़ फलाने बेस कैंप पे जाना है. यू अराइव देयर एंड यू स्टार्ट क्लाइंबिंग. अब वन अदर फैक्टर इज द फिजिकल ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट, एंड देन another factor is the mental side of it. ठीक है. Physical training basically, if you want to do a base camp trek, so depending on which base camp you're going to, you should be at least playing some regular game. रेगुलर गेम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वॉक ही कर रहे हैं. बाय वॉक आई मीन को 5-6 किलोमीटर, आइडियली 10 किलोमीटर. रनिंग कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, रनिंग कर लें. सो कुछ बेसिक फिजिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, और ऐसी एग्जर्शन हो कि जिसमें आपको पसीने आते हो. ये नहीं कि हाँ मैं तो मजे मजे से वॉक कर रहा था तो चलो ठीक है, तो वहां पे शायद वो आपको तंग करे. अगर मजे मजे से वॉक करनी तो फिर 10 किलोमीटर तो चलेंगे, क्योंकि ट्रैक पे तो फिर इससे ज्यादा है. ठीक है. अच्छा, अब ये है ट्रैकिंग के लिए. फॉर क्लाइंबिंग आपकी फिर रिजीम थोड़ी और चेंज हो जाती है. फिजिकली आपको यू नीड टू हैव very strong legs, you need to have upper body strength, but more than your upper body strength, you don't need to be buff, you don't need to be well built, you need to be lean shredded muscles ho, so yeah, that's even better. Even yoga helps if you're in the habit of minimal fat. हाँ, deep breathing अगर आपको आती है तो that will really help you on the mountain, जब आप चढ़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मैटर करता है ये. So yeah, that then some flexibility. So I used to play squash for a very long time. I was number one at shapes for a short time. So squash gives you that sort of मतलब आपको जरूरी नहीं है कि स्क्वाश आपको पतला करे. There comes a stage जहाँ आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, तो टांगे आपकी बड़ी अच्छी होती है बट आप पतले नहीं हो रहे होते. But that gives you आपकी एजिलिटी, आपकी स्ट्रेचिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो सारी वहाँ पे है. बट देन अगेन व्हेन यूर इन द माउंटेन्स, तो आपका चलने का जो तरीका है ना वो अगर फर्क होता है. शिमशालीज दे वुड वॉक फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स एंड देन टेक अ रेस्ट. हम चलते हैं 10 मिनट, हमारी बस हो जाती है. जो स्क्वाश खेलता है वो एक रैली के ऊपर चल रहा होता है, वो रैली वाले उस पर चलता है. पहली रैली खत्म हो गई, रुक गए, अच्छा चलो फिर चले. अब वो जा रहे हैं, आप रुक के आ रहे हैं, आपकी चूचू ट्रेन चली हुई है, तो वो आपको ना वो फिर जरा उस किस्म की करनी पड़ती है. तो या सो ये चीज है. बाकी जो माउंटेनियरिंग की अपनी ट्रेनिंग है वो फिर वो इसके अलावा है. सो ऑफ एंड ऑन यू शुड बी एबल टू ईदर डू रॉक क्लाइंबिंग और अटेंड अ कोर्स. सो देयर आर पीपल जो पाकिस्तान में भी कोर्सेज करा रहे हैं, ऑफ सीजन वो कोर्सेज कराते हैं. तो इवेंचुअली व्हेन यू एम फॉर टेक्निकल पीक, जहाँ पे सारे कील कांटे और आइस एक्सेस और क्रैम्पॉन्स यूज होंगे, तो यू शुड बी फेमिलियर विद योर इक्विपमेंट, यू शुड नो बेसिक्स ऑफ नॉट्स आनी चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें अलग हैं. अच्छा, सो फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, एंड देन द मेंटल साइड ऑफ इट.
क्योंकि when you go to Gashapram or even if you when you go to K2 बेस कैंप, आप पहाड़ नहीं चढ़ रहे, आप सिर्फ बेस कैंप जा रहे हैं, तो पहले दिन कोई 23-24 किलोमीटर है और तपती गर्मी है, आप सोच रहे होते हैं मैं K2 देखने जा रहा हूँ, बड़ी ठंड होगी, बड़ा मजा आएगा। पहले दिन आपकी वो वाट लगती है, आपको लग पता जाता है कि मैं आया किधर, इतनी गर्मी होती है। you're at to above 2000 meters, almost at 3000 meters, और धूप की शिद्दत और यूवी रेडिएशन इतनी होती है कि इफ यू नॉट वेयरिंग अ फुल स्लीव शर्ट, तो आपको लगता है कि मेरी स्किन जो है ना वो पिघल के गिर जाएगी, इतनी वो साड़ती है आपको। सो या और या सो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग के गालियां आप अपने आप को निकाल रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, बट यस यू स्टिल गो ऑन, यू मार्च ऑन, you have to have that single trackness in you, और अच्छी प्लेलिस्ट हो, शामून इस्माइल लगाओ और आप सुन रहे हो और बस जा रहे हैं, टकाटक जा रहे हैं। so yeah, so that is that these are the essentials you need to have. अच्छा, out of this लंबी चौड़ी list of climbing, which of these has been the most memorable climb so far, in both ways, अच्छी भी और बुरी भी, मतलब the best experience and the worst? So see, although 8000 का अपना एक चार्म होता है, उसके साथ you can't match any other peak with that, क्योंकि उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। एवरेस्ट है, गैशेब्रम है, but for someone like me a summit would matter, क्योंकि अगर मैंने if I'd been to the top of Gashapram, तो I would say कि हाँ most memorable मेरे लिए वो है, but for me the highest summit right now is Spantik. So Spantik has been very very memorable. Everest has been memorable for good and bad reasons. Spantik पे it is memorable because yes there was a summit, and second we had to survive. So right after the high point of having summited, we straight away we went into survival mode as well. हमें रात गुजारनी पड़ी कुछ 6300 मीटर पे बाहर -30 डिग्रीज में, तूफान में, वाइट आउट में, without a tent, without food, without water, and we survived. Yeah, and we were coming back from a summit push. तो summit push के हम we went for the summit, रात 12 बजे निकले, दोपहर 12 बजे ऊपर पहुंचे, और अगली रात 12 बजे we are still outside, और हम वापस कैंप पहुंचे अगली सुबह 10 बजे. So for 34 hours I guess, I think if I'm not wrong, so वो 34 घंटे you're out and you're burning calories after calories, ठीक है ना, कई हजार कैलोरियां आप साड़ चुके हैं, and the way we survived. So my first TEDx talk does cover that कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या स्टोरी थी, कैसे बचे. So आपका एक TEDx talk वो भी थी ना, things not to do. that was in Lums. तो वो थी, तो I think it was 5 things या 7 things not to do on Everest. तो so वो भी एक वो भी है, क्योंकि learnings हैं. Whenever even if you are successful in climbing summits, or even if you're unsuccessful on a mountain, learnings आपकी आती हैं. क्योंकि if you're thinking for a next time, तो आप कुछ सीख के जाओगे. If you do it differently, तो फिर ही आप चढ़ोगे. If you keep doing what you did earlier, वही गलतियां दोबारा करेंगे. You keep doing the same things again and again, तो result तो फर्क नहीं आएगा. So my talk, my third TEDx talk, which was at Lums, was about the lessons I learned on Everest. So that was like, don't do these things. And वो topic ऐसे था, but it was about कि ये करो. So it was fun. अच्छा, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. एक आपके साथ छोटा सा सेगमेंट करते हैं. Okay. It's a short game. It's called दिल की बात. और इसमें होगा कुछ यूं कि it's not this or that game. You'll be given 2 options. You'll have to pick one. Okay. Or rapid fire. Okay. Perfect.
Let's roll. New clothes or new phone? New phone. Definitely new phone. Jogging or hiking? And definitely hiking. Hiking. Yeah, hiking. I hate jogging. Acha, what's worse? Laundry or dishes? Dishes. Laundry आसान है. नहाते हुए laundry भी हो Ah. जाती है. Dishes नहीं होती. Yeah. अच्छा, एक तरफ शावर खोला, दूसरा बाल्टी में कपड़े डाल दिए. क्या बात है. नहीं ना, बाल्टी में खड़े होके नहाने हैं. What's worse? Oh. See? राज की बात Multitasking. Another example of दिल की बात बता रहे हैं आप. जी. अच्छा, what's worse? A month without the car or a month without internet? A month without internet. कार के बगैर गुजारा हो जाता है. Art festivals or music festivals? Actually, both. I've already split, but art festivals are much more interesting. Music में तो चलो एक ही किस्म का चलेगा. Yeah, I don't know. ज़्यादा बैंड भी हुए तो आप बैठ के सुन नहीं रहे हैं ना. It's not an immersive experience. Yeah. हाँ. Yeah. Rich and dumb or poor and smart? So if you're poor and smart, you'd eventually get rich. So yeah, poor and smart. Yes. Acha, go back to the past or go forward into future? Go forward into the future. Past में जो था वो हो गया. तो मतलब no regrets. Looking forward. Yeah. बिल्कुल. अच्छा, books or magazines? Books. Magazine अगर हाथ चढ़ के तो मैं इश्तार ही देखता हूँ. Friends or career? Friends. उसमें भी इश्तिहारों में ही बंदा बस तस्वीरें ही देखता है. आहो, बेसिकली यही. बचपन में भी अखबार उठाते थे तो सबसे पहले कॉमिक सेक्शन देखते थे. कॉमिक्स में क्या, तो अखबार तो पढ़ते नहीं थे. और एंड पे वो एक गेम वाला सेक्शन होता था ना. Oh yeah, that one. Pretty much. Coffee or tea? Coffee. Pizza or burger? Pizza. Pizza or biryani? Biryani. जनाब, बिरयानी या हलीम? Biryani. अरे बिरयानी wins. वो भी आलू वाली. Right. सिंधी बिरयानी. I guess हाँ, उसको शायद सिंधी कहते हैं. वो जो स्टूडेंट बिरयानी होती है जिसमें आलू भी ऑरेंज कलर का होता है. हाँ, बिल्कुल. आलू भी होता है, बोटी भी होती है. क्या बात है. Yeah. That was part of my first TEDx talk. I talk about biryani with the alus and all. Pretty much how I started the talk. Right. Acha, you've been featured on so many platforms as well, like Mountain Dew Stories, uske baad BBC, Dawn, Daily Times, Sama, several Mango FM channels. Mango Bars. So how has that experience been? And what's that common question जो आपको सबसे मिलता है? So that question you also asked कि ये शुरू कैसे हुआ, क्योंकि सबको ये तजस्सुस होता है. They put it politely, लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर कीड़ा है क्या. So that is the most common question. बाकी है कि experience has been phenomenal. Daily Times was very kind to me for featuring me. BBC Urdu was with me when I went to Everest. So I wrote essay articles, picture essays for the, from the base camp, from while in Kathmandu. तो वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था. I even sent a video from there. They took me live
while I was in Namche Bazaar. So वो बड़ा मजेदार सीन था. Dawn के लिए I've written twice or thrice. So yeah, that kind of polished my writing skills क्योंकि वहाँ ज़्यादा लिखा, तस्वीरें उतनी नहीं. Mango Bars was the most fun. So उसके लिए हाँ. my TED talk, the third one, so many things not to do on Everest, was originally part of the Mango Bars article. Mango Bars article was like 12 things not to do on Everest. उसमें से फिर मैंने निकाल के तो I made my talk. So I had उसका the निचोड़ most, निकाला. yeah, so I had the most freedom while writing. Because I had freedom with every publication that I did, but this was very much what I wanted it to be like, very much in line with how I write. So yeah, उसके अलावा ट्विटिस्तान के साथ भी they've also featured me, so I would want to mention them here as well. So yeah, so it is always good to stay current, to keep writing. I've been on the Jugan Kazim show. अभी I don't know, अभी आज एक और साहब का फोन आया पीटीवी से, they're starting a new segment, तो शायद वहाँ भी जाने का इत्तेफाक हो. तो if you can share your story visually, yeah, by talking about it, and you can take people on that journey with you, so yep, it's always satisfying. Okay, you get a lot many, you reach out, your reach to a lot many people increases. मैं अपने चैनल से शायद अभी उतने लोगों को ना टच कर सकूं, बट या पीटीवी के थ्रू या बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू, इवन विद यू राइट नाउ. सो ये बात से बात जो है, आई लाइक द फॉन्ट, द वे इट इज, लुक्स अ बिट लाइक नवाई वक्त. But yeah, so so it is about reaching your audience more people. So yeah, that's very true. I'm into fonts and typography. but हाँ, और जैसे आपने बात की मतलब यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और वो सारा कुछ, तो जैसे कि आप खुद भी विजुअल स्टोरी टेलर, तो आप अपनी स्टोरी अपनी ही जुबानी इतनी जबरदस्त तरीके से सुनाते हैं, लाइक यू आर एक्चुअली टेकिंग योर ऑडियंस विद यू टू वेयरएवर यू आर गोइंग. और वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मजे की चीज है. I've gone through your videos और इतना वो वाकई बंदा थोड़ी देर के बाद ना भूल जाता है कि अच्छा मैं वीडियो देख. It's so you know, involves your audience. Yeah, the journey to become a visual storyteller is in the sense कि आप, let's say I went to Everest, या उससे पहले I did expeditions, तो even when I went to K2 base camp, तो I made a slide show, तस्वीरें खींच के ले आया. So I did a slide show to give. हमारा वाइस चांसलर ने कहा जी के we're gonna be giving you सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज. मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे ये रोल ऑफ ऑनर होता है या CDS होता है, तो दे वर गोना गिव मी दैट फॉर माय गोइंग टू K2 बेस कैंप. तो इन रिटर्न दे वांटेड कि हाँ पता तो लगे क्या किया. सो आई गिव देम अ स्लाइड शो. तो आई वाज इनटू प्रेजेंटेशंस. MBA में आके मेरी स्किल्स बेहतर हो गई थी टू गिव प्रेजेंटेशंस. एक तस्वीर को देख के तो स्टोरी शुरू हो जाना. So that kept on going for quite some time. Everest से आके भी what I did was कि I made a slide show about 100 पिक्चर्स, शॉर्टलिस्ट की, अपनी 500 में से 100 निकाली. 100 में से भी वो रिफाइन होते थे, तो 50-60 पे आ गई. तो ईद आ गई, तो आई वाज गोइंग टू गो मीट पीपल. वहाँ मैं अपना लैपटॉप ले जाता था, अपनी HDMI केबल ले जाता था, जोड़ के उनको ना बताना है देखो जी मैं यहाँ गया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ. सो आई वाज प्रीटी मच रिफाइनिंग माय स्टोरी टेलिंग. And eventually what I did was कि अब I also had the footage. So by the time I got to editing the footage, मैं रवां हो गया हुआ था. I knew what I wanted to say when I wanted to say. तो अब तस्वीरों की बजाय I started doing that on footage. तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि it is much easier and much more concise to get your message across through video. बजाय कि आप तस्वीरें और स्लाइड शो करें और घंटा आप अगलों को बिठा के रखें कि मैंने ये किया, मैं वहाँ गया, मैं इधर से गिरने लगा था, तो वो सब उसी में हो जाएगा, वीडियो में हो जाएगा. तो yeah, so it has been a journey. So I like to call myself a visual storyteller because I am not stuck to one medium. I'm also on pictures, I'm also on video, I'm also just giving talks alongside with the pictures. So yeah, so I can even make you visualize even if there is no picture. हाँ, और ये बड़ा एक जबरदस्त टैलेंट होता है.
And talking about this, you've been into theater as well. Yeah, Probably back in, पता नहीं, काफी साल पहले की बात है. 2004-5. Yeah, So yeah. Back in 2004 and 5, I was part of dramatics at GC University. May I was president of dramatics. Got to work with a lot of wonderful people. Or then I went on to do a couple of commercial uh, plays. One with Shah Sharabil. I was part of the cast of Phantom of the Opera in 2008 in Islamabad. और उस कास्ट में, if you were to believe me, lead जो है, it was Hamza Ali Basi, and we had Zahid Ahmed. ah, Ha, and we had Yasir Hussain. So I've actually worked with Yasir Hussain or Hamza Ali Basi and what's his name, the third guy. और भी बहुत सितारे थे वहाँ, but these were the big names who've made it big in Pakistani drama and film. So surely. I keep saying that I want to be in mountaineering what Hamza Ali Basi is in has been in TV. So I would really want to be that. So I guess I'm slowly and steadily getting there. तो हो भी जाएगा. Ah. अच्छा, थिएटर में एक एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग. Oh yeah. How do you see character building when you yourself are preparing for a play or any performance? Hmm. So yeah, so I haven't been in active theater for a very long time now. Although I do love method acting, I do love character roles. I haven't watched a movie in a long time, but when I do watch something and I get to see a drama. So the attraction of the actor is more because of their acting skills. That is what ऐसा ही है. engages me. And I believe that for that you would really need to have a very strong observation. Let's say आपको एक character मिल गया करने के लिए, तो if you don't know, एक तो आप imagine करेंगे कि वो कैसे होगा, so you could get close to that. But then जिस तरह रुबीना अशरफ कहती थी कि she played the police lady for a long time, तो उनसे पूछा किसी ने कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, तो what she would say was कि I would just imagine myself कि अगर मैं पुलिस में होती तो मैं ऐसी होती. तो एक तो imagination है आपकी कि how do you see yourself in that character. The other would be you हाँ. go out and you meet people or you try and find someone who is like that on the street, in the market, and ऐसा then ही है. come back. So एक दफा बल्कि इस्लामाबाद में एक प्ले के ऑडिशन थे, तो उसमें एक रोल था, they wanted a हाउस हेल्प, एक नौकर का रोल था, नौकर का नाम था रॉकेट. तो आई वाज ऑडिशनिंग फॉर दैट. तो अब वो सारी स्क्रिप्ट उर्दू में थी. तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, तो आई स्टार्टेड ऑफ इन पंजाबी. स्क्रिप्ट उर्दू में, मैं बोल पंजाबी में रहा था, ऑल्दो मेरी पंजाबी तब इतनी अच्छी भी नहीं थी. बट अब कास्टिंग वालों का मसला क्या था, दे सेड कि ओहो हो ये आपने क्या किया. अब आई हैड इमेजिन्ड रॉकेट टू बी समवन who would be talking Punjabi. मेरे लिए वो बड़ा ठीक था. कोई हवाई चीज, जहाज चीज है. हाँ, उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा ये बंदा जो है ना, ये हमारी डायरेक्टर की ये कास्टिंग की पोस्ट उड़ा लेगा, इसको तो निकालो ना यहाँ से बाहर. बट सी, दैट इज हाउ थिंग्स कैन बी for character acting, for method acting. You have to really get deep into that. Also, one thing is कि what I found very challenging in acting is मैं romance नहीं कर सकता acting में. मैंने शायद so that is very very challenging for me. उदास roles के लिए you will need to draw a personal tragedy. You will need to revisit a personal tragedy to be able to get into that character. So yeah, but in recent times, other than climbing, other than talks, other than visual storytelling, what I've done is I've been part of a few courses जिनमें एक life coaching का course था,
which has pretty much changed my way of thinking. So I attended this course with the guy's name is Gohar Sharif. He's a very competent life coach. तो उससे हुआ ये है कि what I've realized is, and this is something for everyone, even people who are not thinking of mountaineering, just for general life. One lesson I learned from him was to focus on the things that you want to happen, and you would definitely want to focus on good things. ठीक है. हम कहते हैं कि हाँ हम अपने अल्फाज पे तो कंट्रोल है, जुबान पे तो हमें अपने कंट्रोल है, बट हमें अपनी सोच पे क्या कंट्रोल है. एंड देन सम पीपल वुड से कि नहीं सोच पे पाबंदी नहीं लगाओ, सोच पे ताले नहीं लगाओ, वगैरह वगैरह. बट एवरी थॉट यू थिंक, क्योंकि इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस ना, आप कॉन्शियसली चीजें सोचते हैं, अनलेस इट्स अ सबकॉन्शियस थॉट व्हिच आई थिंक इज रेयर हैपनिंग. तो व्हाटएवर यू आर डूइंग कॉन्शियसली, मेक इट पॉजिटिव. क्योंकि अगर आपने गलत चीज सोचना शुरू कर दी और आप उस पर फिक्सेट हो गए, तो द मैसेज यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स इज के दिस इज व्हाट आई वांट. आपको फिर वही जवाब मिलेगा. सो यू नीड टू बी थिंकिंग, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर इवन थिंकिंग. सोच भी अच्छी लेके आओ. सो इसकी वजह से, इस लाइफ कोचिंग और इन लर्निंग्स की वजह से, आई गेस के आई वुड नॉट बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स नाउ. जिस तरह अब यही मैंने बात की कि गम के लिए आई वुड नीड टू ड्रॉ ऑन इट पर्सनल ट्रेजेडी, तो आई वुड नॉट वांट टू go into a personal tragedy. Why should I want to? But yeah, so but if you want to, yeah, you could. So yeah. बिल्कुल बिल्कुल. और जस्ट टू ऐड टू इट, अभी आपने जैसे जिक्र किया लाइफ कोच वाली बात कि कॉन्शियसली, मतलब आपने अपना फोकस, एक बड़े मजे की टर्म है, इट्स कॉल्ड लेजर बीम फोकस. Oh yeah. कि you just stick to that certain thing that you just want it. और दूसरी बात उसमें एक और आती है कि growth is intentional. You only grow जब तक आप चाहते हो. एक जब आप सोच लो कि अच्छा नहीं, I've achieved it, I'm successful now, उधर ही सब कुछ रुक जाता है. So growth is always intentional. You can grow तब तक जब तक आप चाहें. So that's very interesting. I've been going through books of John Maxwell, और उसमें बड़ी जबरदस्त इस तरह की चीजें मिलती हैं. Okay. Amazing. अच्छा. And coming back to mountaineering. coming back to mountaineering. आपके साथ यूजुअली कितने लोग होते हैं? कितने लोगों का ग्रुप होता है? So the funny thing is कि ट्रैकिंग में तो फिर भी लोग मिल जाते हैं. Very early on in my trekking, I started to self-organize. अच्छा. क्योंकि एक दो ट्रैक कर लिए, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज ट्रैक्स कर लिए, पता लग गया क्या सामान चाहिए, पता लग गया क्या होता है, क्या हिसाब किताब है, सस्ते में कैसे हो सकता है. सो आई वुड गो ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भाई आ गया, कजन आ गया, एंड वी वुड गो फॉर अ ट्रैक. अब द फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन बैक इन 2006 जो थी, उसके लिए ग्रुप बनता था, ग्रुप टूटता था. तो आई पुट माई सेल्फ अ डेट कि इस डेट तक अगर कोई नहीं भी आया तो आई विल गो. मेरे पास पैसे हैं, मैं जा रहा हूँ, चाहे महंगा ही हो, मैं जा रहा हूँ. क्योंकि इट टेक्स दैट सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन टू बी एबल टू पुल ऑफ समथिंग लाइक माउंटेनियरिंग. तो माई फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज अलोन. माई सेकंड एक्सपीडिशन अलोन. When I say alone, तो it's not that कि मैं अकेला बैग उठा के पहाड़ चढ़ा हूँ. No, that is not how it is. You have your porters, you have your guide, but आपका हम जुबान, आपका कोई साथी या हम ज़ौक आपके साथ नहीं है. You're the only client, you're the only mountaineer there. बाकी सब support staff है. So आपका कभी भी communication level वो उनके साथ नहीं होगा. You would get very very lonely eventually. Definitely. वो आपस में ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो आप बैठे हैं, अब आपको नहीं पता. अगर वो अपने हट में झाड़ियां माड़ियां जला रहे हो और धुआं किया हुआ है, तो यू माइट नॉट इवन बी एबल टू सिट इनसाइड दैट. तो वो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी अलोन. सो 2008 में भी मैं अकेला था. 2010 में
I had one other guy with me. 2014 में I had one other guy with me. 2015 में एक और बंदा कोई था. So it has been short groups. 2013 में 2012 में it was a big expedition. 5 पाकिस्तानी थे और 6-7 चाइनीज थे. 2013 में we were like 7 or 9 पाकिस्तानीज on one peak. वो भी बड़ी अच्छी एक्सपीडिशन थी. उसकी मैं शायद अभी एडिट करूंगा. That was a peak from a new route. खुंजराब जाते हुए एक पहाड़ है, कुकसिल रेंज है, उसमें कुछ 4-5 पीक्स हैं. उसमें से एक को हमने नए रूट से समिट किया था. So it was a new route. माउंटेनियरिंग टर्म्स में एक बड़ी बात है, यहाँ लोगों को नहीं आइडिया होगा कि हमने क्या किया था. बट आई गेट द ब्रैगिंग राइट्स क्योंकि मैं अपनी बेगम को 2015 में लेके गया था खुंजराब. तो वहां मैं हुंजा में खड़े होकर कहता था कि वो सामने वो देख रही हो ना तुम, वो जो स्पांतिक है ये मैंने चढ़ी हुई है. ये जो ये खुंजराब जाते हुए ये जो पहाड़ है जो टेढ़ा सा है, ये वाला मैंने चढ़ा हुआ है. सो या दैट इज व्हाट यू गेट, व्हिच इज व्हाट नॉट एवरीवन कैन डू दैट. तो या एग्जैक्टली, करना तो दूर की बात है भाई, सोचना भी बड़ा मुश्किल है. ऐसा ही है. सो गैशेब्रम पे लेट्स से अब मैं गया हूँ लास्ट ईयर. अब ऑल्दो आई ट्रैक्ड टू द बेस कैंप विद अ कपल ऑफ अदर पीपल जो कि मेरे साथ लास्ट डे सेकंड लास्ट डे तक थे. दे वेंट टू K2, आई वेंट टू गैशेब्रम. हमारी राहें जुदा हो गई आखिरी दिन. बट एट द बेस कैंप अब इंटरनेशनल क्लाइंबर्स आए हुए, बैठे हुए, एक लोकल लियाजोन ऑफिसर भी बैठा हुआ है. बट यू योरसेल्फ आर अलोन, यू एंड योर हाई पोर्टर, दैट इज द टीम. करने को गैशेब्रम पे 100 बंदा आया होगा पहाड़ चढ़ने के लिए, ठीक है. बट आप और आपका हाई पोर्टर ही हैं, दैट इज द टीम. अनलेस एंड अनटिल यू collaborate and communicate within your base camp and you say अच्छा ठीक है हम इकट्ठे चढ़ जाते हैं, हम यहाँ इस सेक्शन में हम इकट्ठे होंगे, यहाँ हम रस्सी शेयर कर लेंगे, वहां पे temporarily you will be with them. But I know कि मैं कैसा क्लाइंबर हूँ, तो I knew कि I'd be slowing them, dragging them down. तो मैं उनको ऐसी ऑफर मारता ही नहीं था. मैं कहता था तुम लोग जाओ हम आ रहे हैं, हम अपने चिल माहौल में आ रहे हैं. हाँ तुसी पहुंचो में आया, तो वो हम आ भी जाते थे. तो या सो आई फाउंड आउट के सो शिमशाल में आई हैड वन अदर पार्टनर. तो इट हैज बीन वेरी मिनिमलिस्टिक, बड़े स्पार्टन किस्म के छोटे छोटे ग्रुप्स. एंड नाउ हैविंग क्लाइंब्ड फॉर सो मेनी इयर्स, I don't think I would want to climb with too many people. I'd be happier with lesser people. Less communication, less hassle, less chick. So, आप एक दो हाई पोर्टर्स, वो भी नहीं तो आप एक और साथी, and that's about it. So yeah. और मेरे ख्याल से जितने ज्यादा लोग हो जाते हैं उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हर इंडिविजुअल मेंबर पे. ऐसे ही है. It is hard to get along with everyone. It reminds me of my K2 base camp वाला ट्रिप 2004 का. We were 20 odd people. तो हर मूड का हर बंदा था. खवातीन भी थी, कोई बीमार भी हुआ, कोई ठीक भी हुआ, कुछ उल्टा भी हुआ, कुछ सीधा भी हुआ. सो वो बड़ा औखा ट्रिप था. और सबके साथ लेके भी चलना है चाहे जो मर्जी हो जाए, या आपने सबके साथ चलना है, तो वो भी एक काम हो जाता है. सो या इट्स अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ. या माउंटेनियरिंग आपको शायद आइडिया है ही कि बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में माउंटेनियरिंग के इसके वो पढ़ाए जाते हैं, केस स्टडीज पढ़ाई जाती है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें. डेफिनेटली. अच्छा, कितना आपको नॉर्मली हाउ मच टाइम डू यू डेडिकेट फॉर अ सिंगल क्लाइंब? See, when you go for a big peak, let's say आपने 7000 मीटर की चोटी चुन ली, तो पाकिस्तान में फिर क्लाइंबिंग का 7000 लाइक स्पांतिक, तो आपको कोई 20 से 25 दिन चाहिए. If it is a mountain that is harder than Spantik, so you might need 1 month. For an 8000er, you need for an 8000er in Pakistan, you would need anywhere between 35 to 45 days. For Everest in Nepal, you would need 2 months from Pakistan back to Pakistan. तो या इतना टाइम लगता है. अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ी कभी किसी आपकी ना सही किसी मेंबर की को थोड़ी नियत खराब हो जाए, नहीं यार अब इधर से बाकी ऊपर हेलीकॉप्टर पे चले जाते हैं बस?
Assalamu So alaikum. we have another guest with us right now. इनका नाम है महजबीन. She is my 4-year-old. So Hello, Mahjabeen Zahra Mahjabeen. is, yeah, she goes a lot on me, other than more than my other kids. She's quite active. She's very daring. डरती डरती कोई नहीं है. तो I guess के Oh, ये आप she'll पे गई है. take my legacy forward. तो अभी भी आई है कि छत पे चले. तो अरे वाह. so as soon as this session gets over तो मैं जरा छत पे चक्कर लगा के आऊँ. ठीक है. समझ में अच्छा, आप जा इसके रही बाद हैं आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे. चलो. आपको पता है अभी मैं जूते नहीं पहने हैं. हाँ. जूते पहने के साथ अभी तो मैंने फिर छत पे ठीक है. आप पहन के आओ फिर हम चलते हैं. ओके. ठीक हो गया. So sorry, you were saying something. अच्छा, खैर अब मैं बिल्कुल भूल गया हूँ. आपने कुछ सवाल किया था, मैं वो बीच में रह गया. नहीं, क्या क्वेश्चन क्या था? मैं मेरे भी माइंड से निकल गया कि मैंने क्या पूछा था. It was right लेकिन after you वो were moving. asking कि कितने दिन लगते हैं पहाड़ों पे. So and then you were about to say something कि अच्छा 30 days 45 days and something हाँ. came to your mind. मैंने I did ask something. मुझे अभी बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा. Was it related to family? क्योंकि the family did come in. लेकिन हाँ, अभी थोड़ी बात करते हैं कि मतलब किस तरह से मैनेज किस तरह से करते हैं. You're out for let's say 2 months. तो पीछे Yeah. किस तरह से फिर So see, yeah. So being a Pakistani climber who wants to climb on his own terms, तो budget भी फिर वैसा ही है. So I haven't been able to have a sat phone as of yet. नेपाल में when you're climbing या अगर यहाँ पाकिस्तान में भी आप क्लाइंब करें तो स्कर्दू तक तो आपके सिग्नल आते हैं. स्कर्दू से आगे शिखर तक भी आपका मोबाइल चलता है. But then you're बहुत कुछ into चक्कर ही radio. नहीं है. हाँ, फिर आप रेडियो साइलेंस में है. So I have this Garmin device which sends SMSs. उससे मैं अगर 6000 मीटर पे भी बैठा हूँ, 8000 मीटर पे भी बैठा हूँ, I can send an SMS. तो वो it works two ways. I can actually even post to my Twitter, to my Facebook page from that device, but I cannot access the internet as such. Oh. तो वो बड़ा मजेदार काम हो जाता है. I can send geotagged tweets कि मैं जो हूँ यहाँ पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. तो मेरा बेस कैंप से शायद राब्ता ना हो, लेकिन मेरा बाकी सारी दुनिया से राब्ता होता है उससे. तो वो उससे कुछ जो है उससे आसानी हो जाती है. अब बल्कि ये होता है कि कोई अमीर क्लाइंबर आ जाए बेस कैंप पे, तो वो अगर वो खरात में हमें अपना वाईफाई शेयर कर ले हमारे साथ, तो हमारा थोड़ा सा व्हाट्सएप भी चल जाता है थोड़ी देर के लिए. So that is also what works. Right. अच्छा, Saad, we're moving towards the end of our program. क्यों नहीं चल रहे? तो जाते जाते एंड पे मतलब आपने सीढ़ियां चढ़ने से पहले that one last food for thought for everyone out there. Okay, so what we've seen, अभी तो खैर tourism is not happening. इस साल तो कोई खास नहीं हुआ. Since February end से सब लोग जो हैं वो घरों में टंगे में, बहुत कम. Lucky few have been able to go to the mountains or elsewhere. But we've seen कि last year there was a बड़ा अच्छा momentum बन गया था. And I am hoping कि अगले कुछ सालों में it's gonna get better tourism wise. But what I've seen is कि people like me who've been posting pictures and videos on their Facebook, on their YouTube, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर चले जाते हैं इन जगहों पे. They go to Hunza, they go to Naran. मरी का तो कोई हाल रहा नहीं है. We all know मरी that. तो चक्कर ही पड़ गया. हाँ, हमने नारायण का भी काफी बड़ा गर्क कर लिया है. सो नारायण में एक बाईपास बना था, वो भी अब किसी काबिल नहीं है. यू आपको बाईपास पे भी आधा घंटा लगता है नारायण में से गुजरते हुए. तो वहाँ हमने गंद भी बहुत डाला है नारायण में, पानी उसका पीने वाला नहीं छोड़ा. सो वी अबाउट टू डू द सेम विद हुंजा. दैट इज व्हाट वी हैव डन. तो व्हाट माय एडवाइस, क्योंकि मेरे एक मेंटोर रहे हैं एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान में. हिज नेम इज आफ्ताब राना. He's been associated with a lot of things, a lot of conservation projects. इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन का जो प्रोजेक्ट है वो भी उनके हाथों से गुजरा है.
बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं. सो ही इज बीन माय मेंटर फॉर सम टाइम. तो उनका एक कहना है कि व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस तो टेक ओनली फोटोग्राफ्स एंड लीव ओनली फुटप्रिंट्स. तो जो आप अपने साथ गन शंद लेके गए हैं वो चीज़ें आप वापस ले आए ना. आप क्यों वहाँ गन बचा के आ रहे हैं? मैंने I've seen videos, I've seen messages by people from Hunza last year कि वो रो पिट रहे हैं कि यार आप लोगों ने क्या किया हमारे इलाकों के साथ. तो दुख होता है देख के कि हम लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके गंद डाल के आ जाते हैं. So we need to be better ऐसा ही है. tourists, we need to be better citizens, we need to be more responsible when we're traveling. So yeah, so that would be my parting message. थैंक यू वेरी मच साल, थैंक यू वेरी मच. और जाते जाते तमाम देखने और सुनने वालों के लिए डू फॉलो him on, he's on Facebook, Desi Mountaineer, Instagram, Desi Mountaineer, on Twitter, on YouTube. अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज. ट्विटर पे भाई की प्रोफाइल जो है ना वो वेरीफाइड है, सो वहाँ जरूर है. ओह क्या बात है. तो भाई का सीन से ही फुल सीन ऑन है. ओह या भाई ने वहाँ सीन चुका हुआ है. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच आर्डन. क्या बात है. चले, थैंक यू वेरी मच. Same here. This was particularly it was a very interesting session for me. और मेरे जैसा बंदा जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कहीं भी किसी भी नॉर्दर्न एरिया नहीं गया, मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था. तो डेफिनेटली आपको ले जाएंगे. So yes, I'm looking forward to it actually. और so when you're in Lahore and when I'm in Islamabad, so let's meet up. Done हो गया. कॉफी आपको पता है मुझे पसंद है, so तो कॉफी. Yes, definitely. Whenever you're in Islamabad, the doors are open for you, and would love to see you soon. Chal, thank you. Until then, आप अपना ख्याल रखें. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.